Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 24 और 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज किया फर्स्ट एडिशन ऑफ क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट? तो क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट ये अभी रिलीज की गई। बेसिकली क्या है, हम जानते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ना, क्वांटम अपने आप में ही एक अलग फील्ड है, राइट? तो क्वांटम कंप्यूटर्स हमने देखा कि साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप करेगा। ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है ना, ये बहुत फास्ट होते हैं। ये वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये ऐसे ही ऑप्शंस हमारे साइंटिस्ट के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए खुल सकते हैं जो कि अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए थे, राइट? अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर नोबेल प्राइज भी दिया गया था क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या था? दो पार्टिकल्स irrespective of their location, irrespective of the distance between these two particles, अगर ये क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल हैं और अगर हम एक की स्पिन चेंज कर देते हैं तो दूसरे की स्पिन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, राइट? और ये वैलिड है अगर आप एक पार्टिकल को अर्थ पे रख दें और एक पार्टिकल को आप सन के पास रख दें, राइट? तो इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी डिले अगर हम एक पार्टिकल के स्पिन को चेंज कर देंगे या फिर एक पार्टिकल में कुछ चेंज लाएंगे, दूसरे पार्टिकल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है हमारी क्वांटम वर्ल्ड की, क्वांटम फील्ड्स की, राइट? तो आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में जो क्वांटम फील्ड का जो है ना, क्वांटम वर्ल्ड की जो एक यूसेज है, जो यूज केसेस हैं, हमें वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिसका हम एक तो देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स ही हमने बना दिए हैं। क्वांटम होता है बहुत छोटे स्तर पर, राइट? एकदम बिल्कुल छोटे स्तर पर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो हमारी फिजिक्स होती है, जो पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल्स बिहेव करते हैं वो क्वाइट डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो कमिंग बैक, याद रखेंगे किस मिनिस्ट्री ने पहला एडिशन ऑफ क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट को रिलीज किया? तो ये रिलीज किया गया था, मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाए तो MEITY, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाए तो QETCI, जो कि है क्वांटम इकोसिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट? इन दोनों के द्वारा यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज कराया गया फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम को, जो कि स्कोप कन्वेंशन सेंटर में हुआ न्यू दिल्ली में 14-15 दिसंबर को, और इसी के दौरान पहला क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम ईयर्स फॉर विच ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल बी लीज? तो याद रखेंगे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अभी लीज के रूल्स, यहाँ पे न्यू लीज रूल्स लॉन्च किए गए हैं। ऑन इन न्यू लीज रूल्स के आधार से हम देख रहे हैं कि जो ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना, इनको 3 साल के लिए यहाँ पे लीज किया जाएगा।
फॉर कंडक्टिंग रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सर्विस, एंड फिर इसको 2 साल के लिए अलग से एक्सटेंड कर दिया जाएगा और 5 साल के बाद ये लीज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद याद रखेंगे जो ये इसके बाद जब आपकी कंस्ट्रक्शन की बारी आएगी ना, कि आपको मान लो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पर, राइट, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको फंक्शनैलिटी लानी है, तो फिर आपकी 35 साल तक की आपकी लीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। पर इनिशियली जो मिनिमम लीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स वो रहेगी 3 साल की, मिनिमम 30 साल की, इसके बाद 2 साल भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, राइट। और हम जानते ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करना है, हम चाहते हैं क्लीन एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकें, राइट। जो विंड एनर्जी है, जो विंड चलती है, उससे हम यहाँ पे को रोटेट कर सके विंड मिल्स को, और इससे हम एनर्जी जनरेट कर सके। बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। इवन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो आपकी ये लहरें होती हैं ना, आप इन लहरों से भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, राइट। ये लहरें भी एक तरीके का, आप यहाँ पे एक टरबाइन सी रख दो, जब वो लहर उस टरबाइन से टकराएंगी तो उसकी फिर वो चक्की को रोटेट करेंगी, और उसको वो जब रोटेट करेंगी तो वो एनर्जी जनरेट करेगी। मतलब आप इतने सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे धीरे धीरे, ताकि हम जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं हम उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर सकें, राइट। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, हम उनको हेल्प कर सकें। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, जैसे आपके आर्टिशियंस हो गए, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि इन्होंने कोई साबुन बनाया, राइट, सोप बना दिया किसी ग्रुप ने, राइट, वो सोप की मार्केट कर रहे हैं। फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, कोई दूसरी मार्केट में आ जाते हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पे वो आपके कपड़े बना रहे हैं, राइट, आपके क्लोथ्स बना रहे हैं। दूसरी मार्केट में हम देख रहे हैं हम आपकी जो चप्पल होती हैं वो बना रही हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो इससे क्या होगा, ये बना तो देते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, जब ये सेल नहीं कर पाते इन प्रोडक्ट को, इनकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाती है, राइट, जहाँ पे ये सेल कर सकें। तो उसी चीज़ को हेल्प करने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी एक MOU साइन किया जियो मार्ट के साथ, ताकि इन आर्टिशियंस को, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स जो ये बनाएंगे उसको सेल कर सकें, राइट। इससे क्या होगा, इनकी ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट। तो ये जियो मार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक MOU साइन किया, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके, करेक्ट। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो पार्टनरशिप है ये हेल्प करेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM ऑन बोर्डेड टू द सेलर्स ऑफ कस्टमर, राइट, मतलब ऑन बोर्डेड एज द सेलर्स ऑन जियो मार्ट। तो जियो मार्ट प्लेटफॉर्म की मदद से यहाँ पे ये सेल कर पाएंगे। एंड ये जो अलायंस है ये आपके सरस कलेक्शन, सरस क्या था, ये जियो के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ताकि जो डेली यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स है ना, जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको शोकेस किया जा सके। एंड इसी इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पे जियो मार्ट पे भी ये सेल किए जाएंगे, करेक्ट। फिर एक चीज़ याद रखेंगे, जियो मार्ट की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन रहेंगे, संदीप वरागंती। हेडक्वार्टर रहेगा नवी मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। ये एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और इनको अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला वर्थ 2673 करोड़ रुपीस का फॉर द सप्लाई ऑफ 14 टाइप ऑफ सेंसर्स फॉर द यूज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो याद रखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड एक नवरत्ना PSU है। इनको 2673 करोड़ रुपीस के अभी ऑर्डर मिले हैं फॉर द सप्लाई ऑफ 14 टाइप्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इसमें से अगर देखें तो गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड इनको 1701 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को इनके यहाँ से इनको 712 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक तो लोन अप्रूव किया $300 मिलियन का, एक लोन अप्रूव किया है $100 मिलियन का। ये दो लोन याद रखेंगे। $300 मिलियन का जो लोन अप्रूव किया गया है ये तमिलनाडु स्टेट के लिए किया गया है, ताकि यहाँ का जो अर्बन वाटर सीवेज सिस्टम है उसको हम और बेटर कर सकें, उसमें डेवलपमेंट ला सकें, और जहाँ पे भी कुछ भी टचअप्स की ज़रूरत है, राइट, जहाँ पर हम उसको ठीक कर सकें उसको ठीक किया जाए। तो तमिलनाडु में $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि अर्बन वाटर सीवेज सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया जा सके। दूसरा जो ये $100 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये था इंस्पायर्स प्रोग्राम के लिए। ये इंस्पायर्स प्रोग्राम कहाँ का है, सिक्किम का है, और इसके अंडर जो विमेन है, जो यंगस्टर्स हैं,
उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि जो हाई ग्रोथ एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स एरिया है वहां पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जा सके। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $300 मिलियन का लोन था तमिलनाडु के लिए और $100 मिलियन का लोन यह अप्रूव किया गया ताकि जो इंस्पायर्स प्रोग्राम है जो कि है सिक्किम इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज प्रोग्राम, ये सिक्किम का इंस्पायर्स प्रोग्राम है। इसके अंडर 3,500,000 वीमेंस को एंड यूथ को यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना, ट्रेन करना ताकि जो प्रायोरिटी सेक्टर एरिया में वहां पर वो एलिजिबल हो सके। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। पहली चीज यहाँ पे याद रखेंगे, इन्होंने सीओएफटी अभी यहाँ पे लॉन्च किया, इन्होंने अलाउ किया सीओएफटी। सीओएफटी क्या है? कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। ये बेसिकली क्या है, आप अपने कार्ड को ना एज अ टोकन की तरह यूज कर सकते हैं, उसको टोकनाइज कर सकते हैं ताकि जो ई कॉमर्स साइट्स है ना उनको आप यूज कर सकें थ्रू अ सिंगल प्रोसेस, राइट। तो आप ई कॉमर्स साइट्स पर अपने कार्ड को इजीली यूज कर सकें, उसका टोकनाइजेशन हो जाएगा, आपका वर्चुअल हो जाएगा कार्ड बेसिकली बोला जाए एक तरीके से। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आरबीआई ने जो फिस्कल ईयर 25 की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की वो कितनी की गई? 6% की। यहीं पे जो इन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की है फिस्कल ईयर 25 की वो कितनी प्रोजेक्ट की? 4.8%। ठीक है। एंड जो लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आरबीआई ने, जो लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उस पर भी यहां पर थोड़े जो नॉर्म्स हैं उसको टाइटनिंग करी है। करेक्ट। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा जो भी लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं लोगों को उसके ऊपर थोड़ी टाइटनिंग लाई गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है HDFC लाइफ एंड NKGSB कोऑपरेटिव बैंक। ये एक कॉर्पोरेट एजेंसी टाइप में गए, बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक तरह का बैंकरेंस है जहां पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करेगी टू द कस्टमर्स ऑफ NKGSB कोऑपरेटिव बैंक, राइट। यहाँ पर आपके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होंगे पेंशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से, लाइफ सेविंग, एन्युइटी, लाइफ इंश्योरेंस, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड सो ऑन। अगर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगी? विभा पदलकर। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर एंड सन 2000 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। NKGSB कोऑपरेटिव बैंक की मैं बात करूं, चेयरपर्सन कौन रहेंगे? लेट मी शो यू है। चेयरपर्सन HC नदकर्णी जी। मैनेजिंग डायरेक्टर पांसी सुनील। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एस्टैब्लिश 1917 में। टैगलाइन ट्रस्टेड ओवर अ सेंचुरी। मूविंग ऑन, किस यूनिवर्सिटी ने अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 को जीत लिया फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम? इससे पहले याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को, राइट। यहाँ पर 42 स्पोर्ट्स पर्सन, कोचेस एंड एंटिटीज को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। ठीक है, तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स लॉन्च किए गए, अनाउंस किए गए एंड अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। पहली चीज। अब क्वेश्चन आ रहा है आपका कि किस यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीत लिया है? तो वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर पंजाब में ये रहेगी। ठीक, और इस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीत लिया फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम। पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके अलावा और याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो रहेंगे बैडमिंटन के प्लेयर्स चिराग चंद्रशेखर सेठी एंड रानिक रेड्डी स्वास्तिक साईराज। इन दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, ये बैडमिंटन प्लेयर है। देन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अभी हमने देखा अमृतसर पंजाब, इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया फॉर 25th टाइम। अर्जुन अवार्ड्स की बात करें तो 26 अवार्ड इसको दिया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, तो 8 कोचेस को यहाँ पे दिया जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो 6 अवार्ड इसको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। सोनी स्पोर्ट्स हैज रॉब्ड, नॉट रॉब्ड और हम बोले अपॉइंटेड किनको एज, किस सेक्टर को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल कैंपेन? तो याद रखेंगे कार्तिक आर्यन को यहाँ पर अभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपॉइंट किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, ताकि जो इनका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का जो कैंपेन है योर होम ऑफ फुटबॉल, इसके लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर। किनको? कार्तिक आर्यन को। ठीक, यहाँ पे इंक्लूड करेगा यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप, देन यूएफए चैंपियंस लीग, यूएफए यूरोपा लीग, यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग, यूएफए नेशंस लीग, बुंदेसलीगा,
एमरेट्स FA कप, दुरंत कप, रोशन सऊदी लीग एंड अमंग्स अदर। यहाँ पर बेसिकली इंडिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा अनवेल किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन जो एम्पावर करता है जूट फार्मर्स को। कैसे एम्पावर करता है? इनको यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताएगा, यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, यहाँ पर फार्मिंग के आइडियाज़ बताएगा, ट्रिक्स के बारे में बताएगा कि कैसे आप और बेटर तरीके से फार्मिंग कर सकते हो जूट की, और बेटर तरीके से कैसे आप जूट का केयर कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई। पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा। देखो, लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। एप्लीकेशन रहेगी पाथ मित्रों, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया पाथ मित्रों को? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था पाथ मित्रों को। पाथ मित्रों 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, राइट। एंड यहाँ पर एक चैटबॉट भी प्रोवाइड कराया जाता है इस एप्लीकेशन में कि अगर किसी भी फार्मर्स को, अभी किसी भी व्यक्ति को जो कि जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनको पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी और चीज़ से उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकें ऑन दिस चैटबॉट। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी अनवेल किया पाथ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करेगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरनमेंट। तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे एक गुड बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है। ये गुड बैक्टीरिया आपके प्लांट को ग्रो करने में, प्लांट की हेल्थ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इस बैक्टीरिया को विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया। एंड इस बैक्टीरिया को क्या नाम दिया गया है? पेंटोया टैगोरिया, राइट। पेंटोया टैगोरिया ये नाम दिया गया है। एंड ये टैगोरिया आप देख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बिहाफ पर इनको नेमिंग की गई इस गुड बैक्टीरिया की। रविंद्रनाथ टैगोर ये वो पहले व्यक्ति बने थे इंडिया से जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन लिटरेचर 1913 में। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट किसी भी लिविंग थिंग को नेम किया गया है आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इसकी डिस्कवरी पब्लिश की गई थी इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये गुड बैक्टीरिया क्या रहेगा? पेंटोया टैगोरिया। कहाँ से? विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के रिसर्चर्स के द्वारा इसको अभी यहाँ पे डिस्कवर किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं 25th एशियन यूथ चेस चैंपियन की। इसके दौरान इंडिया के चेस प्लेयर कियाना परिहर, राइट, अंडर 8 एज गर्ल्स की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एंड वहीं पर हर्ष सुरेश अंडर 16 ओपन की कैटेगरी में इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता इन दिस 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप जो कि अल एन सिटी में हुई ऑफ अबू धाबी इन UAE फ्रॉम 12 से 22 दिसंबर। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ डी गुकेश, इन्होंने यहां पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल को भी जीत लिया है, राइट। मार्क करके चलेंगे, डी गुकेश अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल का इनॉग्रल एडिशन हुआ था जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, 15 से 31 दिसंबर तक हुआ था। एंड इन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया बेसिकली। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो छठा एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होगा? तमिलनाडु में होगा। यहां पर एक मैस्कॉट का नाम याद रखेंगे। क्या नाम रहेगा मास्कॉट का? वीरा मंगाई। यहां पे जो टॉर्च है उसका नाम याद रखेंगे, वो है थामजी, राइट। तो अब देख पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा ऑफिशियल जर्सी, लोगो, मास्कॉट इसको लॉन्च किया गया ऑफ द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु में होंगे। ठीक है, फिर यहीं पे मैस्कॉट हमने क्या देखा? वीरा मंगाई। हमने टॉर्च का नाम क्या देखा? थामजी। ये वीरा मंगाई क्या है? एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर, तमिल क्वीन विलू नचियार के बेसिस पे ये मैस्कॉट अपॉइंट किया गया है यहाँ पर। देन जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तमिलनाडु में होगा, 4 सिटीज में होगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक 2024 में होगा, राइट। और इसी के अलावा अगर पूछा जाए कि 5वां एडिशन, ये तो छठा एडिशन हो गया, 5वां एडिशन का हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो दिल्ली एंड पुणे महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिला था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे जो खेलो इंडिया गेम था ना, सबसे पहले सिर्फ खेलो इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके एंड इंडिया में स्पोर्ट्स को, क्योंकि हम देखते हैं क्रिकेट का कितना बड़ा एक
योगदान है, लोग कितने ज़्यादा क्रेजी हैं आपके फुटबॉल क्रिकेट से रिलेटेड। सिमिलरली इंडिया में स्पोर्ट्स से बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। एंड फिर इसके अलावा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ये लॉन्च किया गया था 2018 में, और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को ही चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया था 2019 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये हम देख ही चुके हैं, पहला एडिशन 2018 में हुआ था और अभी छठा एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। कहाँ पर? तमिलनाडु में। एक चीज़ और, ये जो लास्ट एडिशन था, 5th एडिशन, याद रखेंगे अक्रॉस दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल, यहाँ पर हमें देखने को मिला था। मूविंग ऑन, ऑबिटरी की बात करते हैं तो रॉबर्ट एम सोलो ये नोबेल प्राइज विनर रहेंगे। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन इकोनॉमिक्स इन 1987 एंड इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 99। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। नेशनल फार्मर्स डे या फिर हम बोले किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस। एंड दिस इज बेसिकली टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फिर याद रखेंगे ये जो नेशनल फार्मर्स डे ना किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है। ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1979 टू 1980 एंड जो फार्मर्स कम्युनिटी है, इंडियन फार्मर्स कम्युनिटी है, उनके ये लीडर भी थे, चौधरी चरण सिंह, करेक्ट। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस। 2023 में 121वीं बर्थ एनिवर्सरी यहां पर ऑब्जर्व की गई चौधरी चरण सिंह की। ठीक, और पहली बार आपका नेशनल फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2001 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं जल्दी से वन लाइनर रिवीजन की तरफ। QETCI एंड MEITY इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है NQSTS, ये न्यू दिल्ली में हुआ। एंड QETCI ने रिलीज किया क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट को। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने नोटिफाई किया कि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो होंगे ना उनको लीज किया जाएगा 3+2 ईयर्स के लिए, तो मिनिमम 3 साल के लिए इनको यहाँ पे लीज किया जाएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने एक MOU साइन किया जियो मैट के साथ ताकि एम्पावर किया जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। देन BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्होंने बैक किया एक ऑर्डर वर्थ 2673 करोड़ रुपीस फ्रॉम GSL, गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड एंड GRSE। देन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $300 मिलियन का लोन टू बूस्ट अर्बन वाटर सीवेज सिस्टम्स इन तमिलनाडु एंड 100 मिलियन डॉलर का लोन सिक्किम स्टेट के लिए, ताकि उनका जो इंस्पायर प्रोग्राम है जहाँ पे वीमेंस को, यूथ को हम स्किल्स करेंगे, ट्रेनिंग देंगे ताकि जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए वो रेडी हो सके। देन RBI ने एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि फिस्कल ईयर 25 में जो इंडिया की GDP रहेगी वो है 6% एंड यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रहेगा फिस्कल ईयर 25 में वो है 4.8%। देन HDFC लाइफ एंड NKGSB कोऑपरेटिव बैंक ये इनटू कॉर्पोरेट एजेंसी टाइप में है, बेसिकली एक बैंक करेंसी रहेगा ये। देन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया किन के द्वारा ये अवार्ड दिए गए? द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा दिए गए, राष्ट्रपति भवन में दिया गया और इसकी अनाउंसमेंट की गई अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। एंड यहीं पे याद रखेंगे किन को अभी यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी जिसको अभी सम्मानित किया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, तो वो रहेगी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी। उसका नाम क्या रहेगा? तो वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इन्होंने आर्थिक एक्टर कार्तिक आर्यन को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है फॉर द फुटबॉल स्पोर्ट। देन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन्होंने पात मित्रों नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी ताकि जूट फार्मर्स को एम्पावर किया जा सके। देन विश्व भारती के रिसर्चर्स जो कि वेस्ट बंगाल में हैं, राइट, इनके द्वारा एक नया गुड बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया जो कि प्लांट ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया का नाम रखा गया पेंटोइया टैगोरिया, राइट, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के नेमिंग के नाम के बिहाफ पे इसकी नेमिंग की गई। देन एशियन यूथ चैंपियनशिप हुई, 25वां एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप थी। यहाँ पर इंडिया के कियान परिहर एंड हर्ष सुरेश इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एंड यहीं पर याद रखेंगे डी गुकेश ने अभी चाइना ग्रैंड मास्टर्स का इनॉग्रल जो सेशन हुआ था वो जीत लिया है। देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च की ऑफिशियल जर्सी लोगो मैस्कॉट ऑफ द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु में होंगे। रॉबर्ट एम सोलो जो कि नोबेल प्राइज विनर थे फॉर इकोनॉमिक्स, इनका निधन हो गया।
एंड नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं जो कि 23 दिसंबर को होती है। और पहली बार ये हम डे 2001 में ऑब्जर्व किया था, नेशनल फार्मर्स डे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल जी के द्वारा अभी कौन सा एडिशन रिलीज किया गया लीड सर्वे रिपोर्ट का 2023 का, जो न्यू दिल्ली में रिलीज किया गया। तो सबसे पहले याद रखेंगे ये 5th एडिशन था इस लीड सर्वे रिपोर्ट का। लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मतलब हम कितना ईजी लॉजिस्टिक एरिया में बेटर कर सकते हैं, कौन सी स्टेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा कम कर रही है, कौन से स्टेट से हम ज़्यादा अच्छे से लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट, कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर है। तो यहीं पे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दे आर अमंग द अचीवर्स अमंग द कोस्टल स्टेट्स इन द 5th लीड सर्वे रिपोर्ट। ये जो लीड्स है ना, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 3 एरियाज में डिवाइड कर देती है। एक है अचीवर्स, एक है फास्ट मूवर्स और एक आ जाता है एस्पायरर्स, राइट। इन 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर देती है ये लीड रिपोर्ट। अगर यहाँ पे हम बात करें अचीवर्स की, तो अचीवर्स वो स्टेट हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई है। फास्ट मूवर्स वो जाते हैं जो स्टेट्स अभी ऑन द वर्ज हैं ऑन बिकमिंग अचीवर्स। एंड एस्पायरर्स वो हैं जो चाहते हैं कि हम और इंडिया में कंट्रीब्यूशन दें, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स सबको इंडिया में बढ़ावा दें, ठीक है। तो ये 5th एडिशन था लीड सर्वे रिपोर्ट की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये रिलीज की गई। अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ने हमें डिक्लेयर किया कौन से साल को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। कैमलेट्स क्या है? ये कैमल्स की स्पीशीज को ही बोलते हैं कैमलेट, राइट। एंड 2024 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट्स। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, राइट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट्स, राइट, 2024। तो कैमलेट्स के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, क्लाइमेट चेंज में जो उनका योगदान रहता है उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस डे को, इस ईयर को, नॉट डे को, सेलिब्रेट किया गया। फिर एक स्लोगन याद रखेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट 2024 का, हीरोज ऑफ, क्योंकि हम जानते हैं कैमल्स कहाँ पे, डेजर्ट्स में होते हैं बेसिकली, हीरोज ऑफ डेजर्ट्स एंड हाईलैंड, नरिशिंग पीपल एंड कल्चर। ये आपका स्लोगन रहेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट्स का, ठीक है। फिर ये जो रेजोल्यूशन था 2024 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट्स घोषित करना, ये गवर्नमेंट ऑफ बोलिविया एंड इक्वेडोर कंट्री के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। फिर इसी से रिलेटेड देखें इसका एम क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, क्यों जरूरी रहेगा। इससे हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ कैमलेट्स, एंकरेज करेंगे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द कैमलेट सेक्टर, जो प्रमोट करेगा रिसर्च, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज को फॉर द कैमलेट्स। एंड ये प्रमोट करेगा एक्शन जो इंप्रूव करेगा मैनेजमेंट एंड कैमलेट्स टू कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये जो कैमलेट्स होते हैं ना, दे आर द ओनली करंट लिविंग फैमिली इन टाइलोपोडा। ये एक साइंटिफिक नेम होते हैं इनका, उस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेम द प्रोजेक्ट दैट वाज लॉन्च्ड फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू ओवरसीज। इंडियन स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, राइट, जो दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर स्टडी, करेक्ट। तो इस पर्पज़ के लिए उनका सेफ ट्रैवल हो सके, सिक्योर ट्रैवल हो सके, उनको कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ओवरसीज के जाने के लिए, ताकि वहाँ पे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके, इस माइग्रेशन को सेफ बनाने के लिए, ऑर्डरली बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा? तो वो है प्रोजेक्ट प्रयास। प्रयास की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये प्रयास प्रोजेक्ट IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एक UN का ही एक एजेंसी आ जाती है, करेक्ट। तो IOM एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया। टू बी स्पेसिफिक हो तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन IOM एंड इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। तो इन दोनों के द्वारा ये जॉइंट कोलैबोरेशन रहेगा प्रोजेक्ट प्रयास। एंड प्रोजेक्ट प्रयास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10.7 के अंडर आ जाता है, जहाँ पे इसका एम रहेगा कि जो माइग्रेशन हो पीपल की, वो सेफ होनी चाहिए और ऑर्डरली फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है।
मार्क करके चलेंगे। एंड रीज़न बिंग हम देखें इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और ग्लोबली आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको इंडियंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इवन अब तो देखा जा रहा है कि कनाडा में भी आप देखेंगे कितने सारे इंडियंस हैं। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप न्यूजीलैंड चले जाइए, आप यूएसए चले जाइए, आप यूके चले जाइए, आपको वहाँ पर इंडिया की एक अलग से कम्युनिटी दिखेगी ही दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी यूनेस्को अवार्ड्स की बात करेंगे। तो 2023 हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली किनको, कुछ इंडियन स्टेट्स को एंड कुछ इंडियन प्रोजेक्ट को। इवन टोटल देखें तो यूनेस्को जो हेरिटेज अवार्ड है ना 12 प्रोजेक्ट को दिया गया, जिसमें से इंडिया के प्रोजेक्ट्स रहेंगे 6, चाइना के प्रोजेक्ट्स रहेंगे 5 और नेपाल का 1 प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक, और यहीं पे यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज अवार्ड्स की अगर बात करें तो इंडिया का यहाँ पर आप देख सकते हैं रामबाग गेट एंड रामपाट, ये पंजाब इंडिया में है और इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट ऑनर है ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। किनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया इन द यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड, तो वो रहेगा रामबाग गेट एंड रामपाट, जो कि पंजाब इंडिया में रहेगा। मार्क करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड्स कब कहाँ पे अनाउंस किए गए थे? यूनेस्को का रीजनल ऑफिस जो कि बैंकॉक थाईलैंड में, वहां पर इन अवार्ड्स को अनाउंस किया गया। नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनल 2 ऑफ केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। इसको बेस्ट इंटीरियर के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया विद यूनेस्को प्रिक्स वर्सिलीज अवार्ड्स के दौरान, राइट। ड्यूरिंग दिस यूनेस्को प्रिक्स वर्सिलीज प्राइज फॉर द बेस्ट इंटीरियर अवार्ड, राइट, किसको सम्मानित किया गया? वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर, जो ये आपका केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है। काफ़ी ब्यूटीफुली बिल्ट है। इवन जो बाहर से ट्रेवलर्स इंडिया में आते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस या फिर कोई सीईओ आ रहा है बड़ी कंपनी का, तो वो भी केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं और बताते हैं कि एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन जाता है जब हम यहाँ पे लैंड करते हैं। करेक्ट, तो मार्क करके चलेंगे। अभी रिसेंटली यूनेस्को प्रिक्स वर्सिलीज अवार्ड्स के दौरान वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर के लिए किनको सम्मानित किया गया? टर्मिनल 2 ऑफ केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा। फिर यहीं पे याद रखेंगे 2 और अवार्ड्स, एक है प्रिक्स वर्सिलीज अवार्ड, ये जीता आपका शेंजन बाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है शेंजन चाइना में। एंड स्पेशल प्राइज फॉर एन एक्सटीरियर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल ए, जो कि न्यू जर्सी यूएसए में रहेगा, राइट। ये 2 और अवार्ड आपको इसी के साथ साथ याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? संजय कुमार सिंह। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने रिप्लेस किया ब्रिजभूषण शर्मा जी को, ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जो कि जिन पे आप अगर याद हो आपको तो पहले केस भी चल रहा था, राइट। तो अभी कौन नए बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट? संजय कुमार सिंह। इन्होंने किनको हराया? तो इन्होंने फॉर्मर इंडियन रेसलर एंड कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट अनीता शेरॉन को हराया बाय, राइट। इन्होंने 40 वोट्स मिले संजय कुमार सिंह को, और आपकी अनीता शेरॉन को जो 7 वोट्स मिले थे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर संजय कुमार सिंह इन्होंने मेजॉरिटी से जीत लिया है इस इलेक्शन को और ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। जो भी बच्चे वीडियो देखें, मैं चाहता हूँ सभी कमेंट करें। व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्बन टैक्स दैट यूके प्लान्स टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम 2027 ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ मटीरियल्स लाइक स्टील एंड एल्यूमिनियम? दूसरा, रिसेंटली हरियाणा हैज एमर्ज एज द विक्टोरियस इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 बाय डिफीटिंग डैश स्टेट। तीसरा, इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इज गिवन इन विच कंट्री? चौथा, व्हाट इज द नेम ऑफ पोटैटो डिजीज जो कि अभी सब्सटेंशियल काफ़ी डैमेज कर रही है टू द पोटैटो क्रॉप्स अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब? एंड पांचवा, हुज फोर्थकमिंग मेमोर इज टाइटल्ड 4 स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चों का। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर से नीचे बताना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट डेली बेसिस पे मैं ला सकूँ। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.